हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। गाइस, आज हम वर्कशीट 7 करेंगे चैप्टर 4 का। एक्चुअली आई हैव टू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कशीट I have to discuss some important points and definitely I have to elaborate this that why that I have noticed throughout the years that many of the students they are facing problem in this particular portion, actually standard form. So before going to explain the definition, first I'll explain something. After that some points, actually valuable points which will be applied in that standard form. So बिना देरी किए, so let's begin. You can see definition that a number can be written in the form k into 10 to the power n. I think you may have some confusion in that particular expression. Later on I'm going to definitely I'll explain this. So where n is some integer and k is a terminating decimal lying between 1 and 10, that is this. चलो explain करता हूँ. चलो I am going to take a number that is 6 lakhs. Okay. Now 6 lakhs can be written as 6 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5 or 60 into 10 to the power 460. That one you have written. So how many zero over there? 1, 2, 3, 4. So 10 to the power 4. Or someone can say 600 into 10 to the power 3. This way you can write like 60,000 into 10 also you can write. So these are the numbers. See what I have changed, that value. No, if I change this, if I take this 6, then it would be 10 to the power 5. If I write this 60, then 10 to the power 4, like this. Now what I have told, that k lies between 1 to 10. Okay, and one more thing, that here the form, have you noticed the form, that k into 10 to the power n, एक number होगा इधर, that into 10 to the power something, some integer. You can notice a number over there, then 10 to the power something, again a number over there, this one, then 10 to the power something, again this one, 10 to the power something. Understood na? It is 3. So that means for first case k equals to what? 6. For second case k equals to 60. Third case k equals to 600, and the last case that I have taken k equals to 60,000. No, and n equals to what? 5. N equals to what? 4. N equals to 3, and there n equals to 1. But are they all, means that these are the ways, and many more other ways you can write. So these are some ways that you can write a number this way. Okay, but they have told, okay, you have to write this form, but where k lies 1 to 10, that means k should be a single digit number, like 9, 1 to 9, any number, means k value cannot exceed 10, means 9.999, that cannot exceed. It always less than 10. What is the meaning of this less than 10? It may be less than 10 means you can say sir 9, 8, 7, all integers you can take, or someone can say 9.9 also less than 10. No, you know this, like 5.6 also less than 10. So these are also the values, because it is told terminating decimal number. So it is not always integer number you have to take, it may be sometimes decimal number also. Okay, but definitely you cannot take 11.5 or something, or 9.9, you cannot take 99.9 something. Understood? Always the number, means k value, whenever you write the number, any number into the standard form, means this form, you have to take k value between 1 and 10. Understood? It may be 1 also. Sometimes one can write, suppose it is there 1000. So 1000 can be written as 1 into 1000. No, so 1 into
10 to the power 3. So it may be 1 also, but it cannot exceed 10. 10 से कम होगा, छोटा होगा, कोई भी नंबर हो. 9.999 also you can take, but 10 नहीं ले सकते हो, 10 से ज़्यादा नहीं. Understood ना? So I think it is clear now. So can you tell me that I have written 1, 2, 3, 4 ways. In among all these, which can be a standard form? Is that? Chalo, let me check. It is written in the form 10 to the power n form, but the value of k is greater than 10. The value of k is in this case greater than 10 because 60,000 is a big number. Okay, because k value is lying between what? 1 and 10. Okay, what is the meaning of this? 1 less or equal to, that means कभी कभी ये 1 भी हो सकता है और नहीं तो 1 से बड़ा होगा. And definitely, strictly, you can see there I have not given this sign. Strictly less than 10. Okay, so यहाँ पे देखो, अब अगर ये हम चूज करें तो that one is k value is what? 600. That is again greater than 10. So is it possible? No. Now second number देखो, k value is 10 to the power 4. Any some integer, 4 is an integer. So okay, right. This is right. But k value is what? 60. That is again greater than 10. Now take the first one. K value is 6. Now tell me, 6 is what? Less than 10. So that and one more thing, the value of n, some integer, no, 5 is an integer. So this is the standard form. So that 6 lakhs is there, no? How to write now the number, that number in the standard form? 6 into 10 to the power 5. Do you have any doubts now? I think no. Chalo, I am going to give more examples. Now, I am taking more 2 examples. Let me explain you. Now again, this can be written as 9238 into 10 to the power 3, no? 30 over there, so that's why 10 to the power 3. Now, is that in the standard form? Because I have told you now where k value lies. 1 to 10. Okay, 1 and 10. So, is it possible? 9,000 something is the number. So, it is definitely greater than 10. The number 9,238 is greater than 10. So, not possible. So, I have to shift the decimal. So, could you tell me 56? 56 can be written as 56.0, no? Yeah, we can write. So, now tell me, 56, if I shift the decimal 1 place, means right to left side, means 1 place. What to do? Into 10 or 5.6 divide 10? What to do? Into 10 or divide 10? Could you tell me? चलो एक बात बताओ, 5.6 अगर एक नंबर मैंने पहले से ही चूज कर लिया, तो अगर तुम इसको रिमूव करोगे, रिमूव करना मतलब तुम इसको इस साइड में, मतलब यहाँ से कहाँ ला रहे हो, राइट, लेफ्ट से राइट में, तो कहाँ 0 देना पड़ता है, मतलब 10 का पावर का कहाँ लिखना पड़ता है, नीचे ना, क्योंकि तुम इसको रिमूव कर रहे हो, मतलब नंबर क्या हो रहा है, 56, एक इंटीजर हो रहा है ना, मतलब पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो एक प्लेस कहाँ से कहाँ गया, लेफ्ट से राइट तक, तो नीचे 0 आ गया. अगर राइट से लेफ्ट में करोगे तो इनटू होगा, सो दैट मींस दिस इज राइट, दैट वन रॉन्ग. इज दैट क्लियर? ओके, चलो नाउ सो हमें एक बात याद रखो, अगर राइट से कौन सा, मतलब पहले बताओ, और एक चीज इससे पहले और एक चीज, 1/1000, what we can write this, that can be written as 1/10 to the power 3, no, because 30 over there. Now this also can be written as that. तो अगर तुम इस पावर को नेगेटिव बनाना चाहोगे तो क्या करना होगा, तुम्हें जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो 10 to the power -3 हो जाएगा ना, तो नीचे रहेगा, तो वो कैसे लिख सकते हो, 1/10 क्यूब कैन बी रिटन एज 10 to the power -3. और तुम लोग करें ना ऑलरेडी, x to the power a minus m equals to 1/x to the power m. So 1/x to the power m means what, x to the power -m. ये सारे जो प्रोसेस है तुम लोग कर चुके हो. तो अगर नीचे होगा पावर तो उसको ऊपर में लिखोगे तो माइनस आ जाएगा. अब कुछ ट्रिक्स बताएंगे, उससे पहले
एक बार ये चेक कर लो कि अब पॉइंट मेरा कहाँ है, यहाँ पे है, एक बार देखो ठीक से। दिस कैन बी रिटन एज 0 into 10 to the power 3। आप पॉइंट को यहां से कहां शिफ्ट करना है, हाउ मेनी प्लेस, अब बताओ। अगर तुम एक प्लेस शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा 923.8। दिस नंबर इज 900 समथिंग, तो ये ग्रेटर देन 10 है या नहीं, तो नहीं होगा। तो और एक करके देखो, यहाँ पे आओ, तो आपका पॉइंट तुम्हारे कहाँ है, इस जगह पे है, तो आ गया नंबर 92.38। आप फिर से बताओ, ये भी 10 से ग्रेटर है, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। और ठीक है, नहीं पॉसिबल तो और एक शिफ्ट करो, तो आप यहाँ पे आ गया, तो आप तुम्हारा नंबर है 9.238। अब ये नंबर 10 से क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। अब ये नंबर 10 से छोटा हो गया, मतलब हमें यहाँ तक, इस जगह से कहाँ पॉइंट लाना है, यहाँ तक 9 के बाद। ओके, तो कितना प्लेस मैंने शिफ्ट किया पॉइंट को, यहाँ से 1 2 3 प्लेस, सो अल्टीमेट आ गया 9.238 इंटू द पावर 3, तो जो है उसको पहले लिख दो। आप बताओ, अगर इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इसका कैलकुलेशन करता हूँ। ओके, 9238 कैन बी रिटन एज 9.238। अब तो तुमने डेसिमल प्लेस, अब बताओ 9238 एंड 9.238 बोथ द नंबर्स आर सेम, नो दे आर नॉट सेम। सो डेफिनेटली हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, 10 की पावर से, और नहीं तो डिवाइड करना है। तो मैंने कहा था कि अगर राइट से तुम लेफ्ट में आओगे, राइट से लेफ्ट में, तो कौन सा हैंड तुम ज्यादा यूज करते हो, राइट। तो राइट हमेशा हम लोगों के लिए पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हमेशा हम लोगों के लिए नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव पावर। आप बताओ कितना प्लेस शिफ्ट किया है, यहाँ से 1 2 3 प्लेस, है ना, तो 10 to the power 3 आएगा। कहां से आ रहा हो, राइट से लेफ्ट में, तो राइट से लेफ्ट में आएंगे तो कितना प्लेस शिफ्ट किया, 3, तो +3 और -3 होगा, प्लस, क्योंकि राइट से आ रहा हूं, और राइट क्या है हम लोगों के लिए, पॉजिटिव, क्योंकि राइट हमेशा हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं और लेफ्ट हमेशा नेगेटिव मान के चलता हूं ना। तो ये हो गया। आप देखो तो आंसर आएगा 10 to the power, ये तो आ गया। अब बताओ, सो दिस, इसके बारे में मत सोचो, 10 to the power 3 जो है ना, उसके बारे में मत सोचो। आप इसका वैल्यू क्या हो गया, दिस इंटू 10 to the power 3। अब यहाँ पे और एक तो 10 to the power 3 है, तो उसको भी लिखना है, आ गया। अब क्या होगा, 9.238 इंटू 10 to the power 3, 10 to the power 3 बेसेस आर सेम, सो पावर मस्ट बी एडेड, सो 6। सो दिस इज द आंसर। एक बार फिर से देखो, मैंने इसका कैलकुलेशन करके यहां तक लिखा है, इसका अलग से लिखा है, क्योंकि यहाँ ये तो है ऑलरेडी, तो इसका अगर करोगे तो ये आएगा। अब इसका देखते हैं, तो हमें कहाँ ले जाना है, पॉइंट को पहले चेक करता हूँ। तो यहाँ से एक 1 प्लेस शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.028। अब बताओ ये नंबर क्या है, 1 से छोटा है या नहीं, आ गया। तो ये नंबर अगर 1 से छोटा है, मतलब 1 इससे बड़ा नंबर है, तो हमें अभी तक, क्योंकि 1 और 10 के बीच में है जो भी है, तो फिर से हमें शिफ्ट करना है, और एक प्लेस करोगे तो आप क्या आएगा 0.28। फिर से ये क्या है, 1 से छोटा है, तो और एक प्लेस शिफ्ट करो, अब आ गया 2.8। अब बताओ ये 1 से छोटा नंबर है, नो, ये 1 से अब बड़ा नंबर हो गया। तो ये होगा k का वैल्यू, समझ में आ गया। अगर तुम और एक शिफ्ट करोगे तो ये 28 होगा, 10 से बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होना चाहिए, सिर्फ 2.8, तो 2.8 लिख दो, आ गया समझ में। अब कितना प्लेस मैंने शिफ्ट किया, 1 2 3 प्लेस, नो 3 प्लेसेस, सो 10 to the power 3। अब बताओ प्लस होगा या माइनस, मैं कौन सी साइड से कौन सी साइड में जा रहा हूं, लेफ्ट से, कौन सी साइड से जा रहा हूं, लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, सो -3 होगा। समझ में आ गया। जल्दी जल्दी मतलब शॉर्ट प्रोसेस में, मतलब ट्रिक जो है ऐसे कर सकते हो। अब क्यों माइनस हो रहा है उसका एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लो। देखो अगर इस नंबर को फिर से लिखे हम 0.0028, अगर इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो हाउ मेनी जीरो विल कम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आ गया ना। तो 28 हो गया हमारे लिए। अब 28 कैन बी रिटन एज 28.0, डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूँ, 10 to the power 4, क्योंकि 4 0 वर देयर। अब बताओ 28.0 आ गया। अब 10 to the power 4 कैन बी रिटन एज 10 to the power -4, अभी एक्सप्लेन किया ना वो
कि x टू द पावर माइनस m कैन बी रिटन एज 1 बाई एक्स टू द पावर m, तुम्हारी बुक में ये लॉ है। तो 1 बाई एक्स टू द पावर m मतलब क्या है, x टू द पावर माइनस m। तो इसको अलग से लिखोगे तो क्या आएगा, 1 बाई 10 टू द पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर माइनस 4। तो 28 को एज इट इज लिखने के बाद हम ये लिख सकते हैं। आप बताओ 28 जो वैल्यू है, k का वैल्यू 28 आ रहा है, ये क्या है, 10 से बिगर नंबर है, तो होगा ये नहीं। तो हमें शिफ्ट करना है यहां से यहां तक। हाउ मेनी प्लेस, 1 प्लेस, तो क्या आएगा 2.8। आप k का वैल्यू जो 2.8 है ना, वो 10 से छोटा नंबर है। तो बस कहां से कहां शिफ्ट करना है, 1 प्लेस। अगर 1 प्लेस शिफ्ट करोगे तो आप बताओ, इसका पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, चलो ठीक है। सो 2.8, हाउ मेनी प्लेस, 2.8 लिखो पहले। अब बताओ हाउ मेनी प्लेस मैंने शिफ्ट किया, 1 प्लेस। सो 10 टू द पावर 1। अब बताओ 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। दैट राइट से, कहां से, राइट से लेफ्ट में आ रहा हूं, राइट से, राइट मतलब पॉजिटिव, तो ये 1 हो गया। इनटू, अब ये जो है एज इट इज इसको लिखो 10 टू द पावर माइनस 4। अब बताओ 2.8 तो हो गया। अब 10 टू द पावर 1 एंड 10 टू द पावर माइनस 4, बीच में इनटू है तो बेस आर सेम, तो इन दोनों में क्या होगा, ऐड होगा। 1 एंड माइनस 4 को ऐड करोगे तो -3 आ गया। सो 10 टू द पावर -3, 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया है। गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को ये कहा था कि मेरा जो पिछला वीडियो उसमें कहा था एंड में कि अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं इसका जो वर्कशीट है एक ही वीडियो में कर दूंगा। लेकिन देखो मुझे पता था, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर ठीक से करना है ना, इसका कंसेप्ट ठीक से तुम्हें जानना है ना, तो ये टाइम लग जाएगा। तो वैसा ही हो गया कि ये वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट्स करीब हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो वर्कशीट जो 7 है, लास्ट वर्कशीट इस चैप्टर का, वो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो बस एक दिन का ही बात है, कल ही उसको अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल में नए हो, फिर से वही बात कर दो ना, सब्सक्राइब यार। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो लाइक कर दो, कमेंट भी करो। तुम लोगों को समझ में आया या नहीं ये मुझे तो पहले बताओ, क्योंकि मैं बहुत ही मेरे दिल से पढ़ाया हूँ ये जगह। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया, तो वो भी मुझे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय।